So we all are here to know more about the Igniter 100 exit plan and about the Igniter 200 and SMJ2. So we warm welcome to Mr. Hem Patel, Senior Vice President from Solmex. And I think so, I'm not sure 100% if Mr. Sandhu is ready for meeting because he is busy with the some banking or debit card updations and all formalities and blockchain. So he may be join, he may be not join. So yeah, just a minute, he is coming. Okay, Mr. Hem Patel, Namaste ji. Namaste, greetings, Sat Sri Akal ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh, and Assalamu alaikum to each and every single one of you. I know it's good evening in India right now. There are some flowers for you. I can't give them you. Recording in progress. Give them to you over the airways. Yes, sir. So it's a pleasure to be with you all today. I'm going to try and answer as many questions as I can. And I know what the number one question is going to be. And you probably already know what my answer is going to be. But I've got some fresh, exciting news for you. We're growing. Some fantastic things are happening. We had a phenomenal leaders call yesterday. But enough from me. I will put you back onto your sensational host. I need to get a pair of headphones like you, Mr. Rakesh. I don't even have headphones. So I think I'm going to have to ask the corporate team to get me some beautiful headphones like yours. But back over to you. I'm here. I'm not going anywhere. So I'm going to enjoy the call with you. No problem. You're coming to Dubai, so we welcome and we will be happy to honor you with this type of the gift. Thank you. No problem. No problem. Thank you. Sir is also coming. Good news for all of us. Sir is also going to join us short while. So, सबसे पहले around number is only 299 at presently. Gentlemen, ladies and gentlemen, invite your guest. Because these movement never come back. ये जो अभी 2 मिनट पहले सर बुके दे रहे थे ये टाइम निकल गया राइट जिसने ले लिया वो उसके पास खुशबू आनी शुरू हो गई So Mr. Hem Patel already promised कि हम इंडिया एशिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका इन कंट्रीज को हम बूम करेंगे with the SMG Academy. So उसके लिए जल्द से जल्द आप लोग तैयार रहें इन कमिंग डेज रेगुलरली हम लोग शेड्यूल करेंगे मीटिंग्स को प्रेजेंटेशंस को एकेडमी के बारे में एसएमजी लॉयल्टी पॉइंट्स और एसएमजी टोकन्स के बारे में तो जो आप सब लोगों की ज्यादा जो फोकस है आज के मीटिंग के लिए वो इग्नाइटर 100 के 3 ऑप्शंस जो हमें मिले हैं बीइंग ए शेयर होल्डर ऑफ इग्नाइटर 100 तो हम लोगों की जो 4 साल की जर्नी थी हम सब की किसी भी कंट्री से हम बात कर सकते हैं तो उसको हम लोग कैसे कैपिटल गेन में एंजॉय करेंगे वो बेनिफिट वो सारा जर्नी जो है सर आपके साथ शेयर करेंगे ये लास्ट मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें आज डिस्कशंस करना है और जिसके साथ हमें डायरेक्शंस लेने डिसीजन लेना है और वो 19 सितंबर लास्ट डेट है 19 सितंबर के बाद में जो भी आपका डिसीजन पेंडिंग रह गया उसको आप कंपनी से रिवर्स नहीं करवा पाएंगे तो 19 सितंबर तक आप आपकी टीम जितना जल्दी हो सके अपना डिसीजन करें चाहे आप अपना right oh yeah sir is here okay let me invite him to be a panelist sir you are panelist now welcome है आपका अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग और नेक्स्ट टाइम आज गलती से मेरे से वो हिडन वेबिनार का लिंक बन गया नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक अ लिंक फॉर ओपन मीटिंग लाइक जिसमें हम नंबर्स ऑफ पीपल्स वी कैन सी कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है तो over to you Mr. Hem Patel क्या आपकी तरफ से अपडेट है what you like to add on for the future plan coming days how we can move and how we can plan with the Indian Pakistan
and Bangladesh and Nepal teams. So Bhutan team also. So yeah. Okay. Well, look, you know, brothers and sisters, I would like to help you understand one thing. Over the last 25 years of my career, I've had some great mentors, and I've had the great opportunity to learn from people like Anthony Robbins, Brian Tracy, Zig Ziglar, Jim Rohn, and even got the opportunity to become friends with Anthony Robbins' son. His name is Jay Robbins, and he is a young entrepreneurial and motivational educational speaker. And one of the things that I see in every single book that I read or I listen to, audio tapes when I'm traveling, is if you take one goal and focus on one goal, but choose a goal that takes care of all the other small goals. Your goal may be to give better education to your children. Your goal may be to improve the quality of your living, buy a new home, maybe donate some money to your local community to help community projects. Whatever those goals are, focus and write down with pen and paper. Every time I'm in a meeting, I've got pen and paper with me to have it. Pick one goal that takes care of all the other goals. Now, when I studied the remuneration program and the compensation plan that SMG have, I said to Abdul and Serge, are you serious? Are you telling me that this is how much money you guys are making? I have a report. It's next to me everywhere I go. I get it every single week. Okay, the chief operating officer gives it me. And this report tells me who are the top 100 earners in the company. Who are the movers and the shakers of the company, okay? And I'm looking at the report, and I'm telling you, the landscape of what we are doing is changing. So I'm going to use this. I'm just going to take 5 minutes of your time, and I'm going to explain something. Pick one goal. And in our business, your immediate goal, everything you should do is focusing on becoming a global president. If your goal is not to become a global president, okay, that's okay. There's nothing wrong with that. But all I'm going to say to you, okay, is if you're not going to become a global president, you're not going to be making $1 million plus a year. If you want to be making $1 million plus, you got to focus on becoming a global president. So the money is a byproduct. Never focus on making money. Yes, money is important. Money is what pays for a warm home. It's what allows you to invest in education, in training, in personal education, in having a great diet, and many other things. But if you just focus on money, you won't focus on building good relationships. Your people skills may not be the best because all you're focusing on is money, 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 money. Money is a byproduct of good work habits. If you find somebody who is successful, and not successful for a week, for a month, for a year, I'm talking successful for a decade. If you look at their work habits and their people skills, I guarantee you they're up there. They have good communication skills, they have good compassionate skills, they have good people skills. Money becomes a byproduct of good work habits. I'm going to tell you a quick story. I was a bank manager for HSBC Group in my early 20s. And I had a client who came to me, and I can't say his name, I'm not going to say his name, but I had a client who came to me, and this guy was making, in the UK, in the early 2000s, he was making over £750,000 a year. That's a lot of money, okay? And I was shocked because I was a junior banker at the time, and I was probably making 10% if I was lucky of what he was making. $750,000. I'm just going to try and work that out. I think if somebody can help me, 750 times 80 on average, I think that works out to be something like 6 crore a year. Is that right, Rakeshji? It works out to be about more than. Yeah. Okay. So I'm going, wow, and I says, what are you doing in the bank? Why have you come to see me? And he goes, well, I have to borrow some money. I said, okay, what do you need the money for? And he says, I have to borrow some money to pay my taxes. And I says, well, okay, no problem. You have the income. I'm going to give you the money. And I had to borrow this guy to pay his taxes about $250,000, about £250,000. And when I was going through his personal financial statements, okay, I was going through his bills and his expenses. And you know what I saw? Art, restaurants, partying, holidaying, fancy cars, fancy jewelry. I saw nothing about saving. I saw nothing about self-education. He was making great money, but he was, pardon the expression, but he was wasting the money. Now, some people may go, well, that's
That's cushy. That's a life, you know, it's a lifestyle. Yes, but do you really need to be spending that much money on partying, on art, and all this other stuff that he was doing? And I realized that at the same time, I had arranged for some finances for a young lady who was a secretary in a company, okay, and she'd been there for about 15 years, okay, she was in her 40s, and she was more financially well off in cash terms than somebody who earned maybe 50 times what she earned. So the moral of the story is this: it's not what you make that is important, it's what you save. We're going to be doing an RD event. We're going to be teaching you wealth building seminar. Okay, we're going to be talking to you about how to save money, how to build wealth. Making money for 1 week, 1 month, 1 year is great, but you got to keep that momentum going. You know, I study success, and you have some phenomenal leaders. I actually recorded the beginning of your meeting. I sent it to my team, okay, and I'm going, wow, look at how the team has. You got a professional slide, you got upbeat music. You know, I'm letting you know this because I study success. Whenever somebody's successful, I study why are they successful. Don't get caught up in the wow. When somebody's successful, ask them how. Don't go wow, okay? Always ask them how. And you know, especially I can say this because we are from the Asian community, African Asian community. We give so much. In actual fact, Abdulji can say to you, we had this same conversation last night. This is us, God's honest truth. We had this conversation. When somebody sees somebody of power, they bow. When somebody sees somebody who doesn't power, they ignore. And you know, we got to shift that mentality. We got to teach our future generations. You need to find out why somebody doesn't have money and make sure you don't copy those mistakes. And you need to find out why somebody has got money and copy those mistakes. Copy those successes, as long as they're legal. So pick one goal. Global president. I'm going to share a slide with you, okay? Please don't take a picture of it. Please don't post it on social media because I don't want Christina having to go at me. Okay, I'm going to come back to that slide in a second, but I've got the slide somewhere on here. IT is not my best skill, but I've got the slide. I'm going to come to you 1 second. I'm going to bring the slide up. This is all the communication that's going on. Just bear with me. Okay, where is the slide gone? This is all the work we're doing behind the scenes. So if you think we're sitting in London in a fancy office, okay, it's not the case. Let me just go back to the Zoom room that we're in, and if I can just share my screen, I'm going to show you this slide. Look at this slide. Can you all see the slide? Rakesh, can you see this? Global Presidents Club. Yeah, I noticed that one today. We have designed this flyer. We're going to be launching this, okay? You're going to be seeing more of this on the channels. The Global Presidents Club is going to give you access to exclusive prizes, VIP travel. Okay, you're going to get special recognition. We are going to make you part of the strategic team that is going to decide the future, the systems, the strategies, the planning, the S&P meeting that we are going to have in SMG. We are going to make the Global Presidents Club part of that. We want to build a family. I want to be sitting here in 10 years' time and saying, do you remember when I said this to you on the 7th or the 8th of September 2021? Yeah. Now in 2031, and look at how big we've grown. Now, I'm going to tell you something straight. We're going to get a lot of challenges. Our plans are big. You know, just like when you have a big farm or you have a big property, it takes time to clean it. It takes time to maintain it. It takes time to paint it. It takes time to build it. We are building a monument of life. So this is some of the future stuff that's happening. But I want to do a goal setting seminar. One of the things I learned to master was set a goal and achieve the goal. No more monthly goals. You are not going to become a global president over a month or a quarter or a year. Every week. You break those goals down to weekly sizes. It doesn't matter how much roti, dal, sabzi, whatever you eat today. In 3-4 hours, your belly is hungry again. And your goals have to be the same. Your brain can only achieve what it can believe. I'm going to say it again. Your brain can only achieve what it can believe. Sometimes we become overindulgent. You know, when I was young, I used to get in trouble because I used to put too much food on my plate and then waste it. And I used to get a smack from my mom and dad. And they said, you haven't seen Garibai, okay? My mom comes from Gujarat. They were very poor. My dad came from Kenya again. They were very poor in Kenya. And I say this because I want you to understand I come from humble beginnings. I'm saying this to you so
Focus on your next rank advancement. Yeah. And go, I'm going to hit this rank advancement in 7 days. I'm going to hit it in 10 days. But focus on the week. Have you spoke to 5 people today? Have you done a mini presentation and studied what Rakesh is doing today and gone, do you know what? I'm going to do my own presentation. I'm going to do the business opportunity with 5 people, 10 people, 2 people, 1. It doesn't matter. Just become a master at presenting the opportunity. And then produce 5 people who can copy you, and then another 5, and another 5, and focus on the power of 5. The human brain cannot manage more than 5 people. Yeah. Okay, the study has been going on for years. The Americans are the best at management studies. Reliance, all these companies. Okay, I'm not saying that because Mukesh Ambani is a Gujarati uncle or a chacha or a thai or a kaka or whatever. No, nothing. Okay, we're not related. Yeah. But the reason I study is because I go, how do you go from being a petrol attendant's son, okay, to running a conglomerate organization? It's discipline. Discipline is the biggest thing you have to understand. Yeah. So please, I don't want to take up too much time. I hope you've got some great nuggets from what I've been saying to you. We're going to be doing a goal setting seminar. I'm happy to sacrifice my evenings, okay? I want to see 500 people on this call. You get 500 people on this call that are all on the back office as senior manager or national managers. You get them on there. As long as they're on the system, I'm going to give you away over $500 worth of gift codes to the members. Okay, Rakesh is not going to get a single dollar out of it. It's not for him. He has enough gift codes. This is for you guys. So please, 500 people on the next call, and I'm more than happy to break the budget. I'll get in trouble by Abdul and Serge. No problem. I don't have a problem getting in trouble for you. But this is what I want to leave you last with. Okay, India, you have some competition. The report has just come in, and it's here. It's just landed on my screen. Can you see this? Yeah. Okay, in first position is Nepal. In second position, Bangladesh. In third position, Pakistan and UAE, joint. Okay, give them a round of applause. In fourth position is India. And in fifth position, newcomer on the group, Nigeria. Now look, this is from the 1st to the 7th of September. Okay, so that we were getting the report in late last night. Abdul Judi will tell you, I was with him till about midnight. We were going through the reports. There are so many changes coming. We are talking to the top 3% of education authorities. We're talking to leading blockchain institutes, leading crypto educators, leading DeFi educators. We want to bring you the best of the best. We will have a date with you soon. I'm not going to say the date, but we can guarantee you Tony Kent in our education department is focused on it. My last message to you is today is this. Anything you put your mind on, you can achieve. Okay, study success like the cricket team. The cricket team don't take no for an answer. It's the biggest sport in India. Make your decision. You're going to be a global president in 2022. But focus each week at a time. I hope you've got something from it. Okay, my love, my regards. God bless you all. Please have a safe onward trip. Please follow your country guidelines. Please make sure you keep yourself and your family safe. Until then, I salute each and every single one of you. Thank you. Yep, thank you. Nutshell जो मिस्टर हेम पटेल साहब ने हमें गाइडलाइन दी है वो इसके बारे में कि आप अपना गोल बनाएं, खाली बाइनरी इनकम के पीछे मत भागें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप कभी कमाएंगे, कभी कम कमाएंगे, कभी ज्यादा कमाएंगे। तो आप अपना फोकस जो है, जो ऑलरेडी डायरेक्टर लेवल पे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप अपनी डेजिग्नेशंस को अपग्रेड करें। तो जो नेक्स्ट ईयर 2022 का थीम लिया है कंपनी ने वीआईपी क्लब के लिए फॉर द ग्लोबल प्रेसिडेंट, तो उसको फोकस करें। मैं हर बार आपको गाइड करता हूं कि मंडे को या ट्यूसडे को आप इवनिंग में अपना रिकॉग्निशंस पेज को देखें, तो जो आपका रिकॉग्निशन, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो वहां से आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि उसी से मैचिंग बोनस बनेगा, उसी से लीडरशिप मैचिंग बोनस बनेगा, उसी से आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, रिवार्ड्स रिकॉग्निशंस मिलेगा, और उसी से आपकी बाइनरी भी बनेगी। तो बाइनरी फ्री है, हम लोग बाइनरी के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सर ऑलरेडी हैं हमें अपडेट देने के लिए। वेलकम सर, आपका टाइम बड़ा कीमती है, आई नो आप बिजी हैं, तो प्लीज ओवर टू मिस्टर अब्दुल रहमान संधू सर, CFO Solmax। थैंक यू। Thank you very much. I think Mr. Ham Patel gave a very good advice, and जो उन्होंने दिया है, even I'm learning because I'm not a marketing person.
तो जब वो बताते हैं तो मेरे लिए खुद जो चीजें बड़ी इंस्पायरिंग होती हैं। तो बीइंग ए टेक्निकल पर्सन होता है, हिंदी में करना है या उर्दू में करना है? हिंदी उर्दू कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा, यानी इंग्लिश में नहीं करना है, हिंदी उर्दू में करना है। इंग्लिश कभी कभी यूज कर सकते हैं, कुछ एक लोग हैं बैठे हुए। फर्स्ट ठीक ऑफ है। ऑल मैं भूल गया सर, आपको भी मैनेजमेंट को भी, पटेल साहब को भी, क्योंकि इनके आने से हमें बहुत प्रोफेशनलिज्म और एनर्जी मिल रही है। नेपाल वालों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, रियली दे आर वेरी वेल, मतलब स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। किसी भी टीम, किसी भी लेग की बात कर लें, नेपाल इज डूइंग मार्वलस, मतलब डेवलपमेंट हो, बिजनेस हो या उनकी रिकॉग्निशन हो। तो सल्यूट है उनके लीडर्स को, सल्यूट है उनकी टीम्स हेड को जो वो लीड कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम भी उनसे सीखें और कुछ ना कुछ आगे रिकॉग्निशंस को लेते। कांग्रेचुलेशंस टू द नेपाल एंड अदर कंट्रीज। थैंक यू। ओवर टू यू सर, नाउ आपका टाइम है। थैंक यू वेरी मच। चले, मैं सबसे पहले आई स्टार्ट विद i100 जो हमने नया प्लान किया, तो उसमें मैं नोट बताना चाहूंगा। खासतौर ये टेक्निकल बात है, ज्यादा मोटिवेशनल शायद आप बनाएंगे इसे। तो 3 प्लान है। पहला तो प्लान है कि आप उसको SMG टोकन में कन्वर्ट कर लें। अब इसमें प्लस माइनस एक डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी हो रहा है और ग्राफिक डिजाइनर वर्किंग ऑन इट, जो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको मेन में बता देता हूँ कि कुछ लोग जो क्रिप्टो ओरिएंटेड हैं, जो चाहते हैं कि उनके i100 को टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो 1 टोकन के बदले 1 i100 के बदले 1 टोकन मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि हम उसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप लें, और वो लेना चाहता है तो ले। उसमें क्या होगा कि उनकी जितने भी i100 हैं वो स्वैप हो जाएंगे, जितने में उनके ओपन में है, जितने भी सेविंग में पड़े हैं, वो सारे उससे स्वैप होके वो दूसरी चीज आ जाएगी। राइट, ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है लॉयल्टी। अगर लोग उसको लॉयल्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब उसमें ये है कि लोगों को 1000, जैसे किसी ने 1000 पाउंड का पैकेज लिया, उसको 1500 लॉयल्टी इंटाइटलमेंट होगी। ठीक है। अब उसमें ये भी देखना, कई लोगों ने, आपको पता है, पोर्टफोलियो में जाके 1000 की ट्रेड भी कर ली, कईयों ने 800 की, कईयों ने 600 की, कईयों ने 500 की, डिपेंडिंग ऑन वट एवर दे की did। जितनी कर ली, बाकी का जो बैलेंस है 1500 से उसने 800 की कर ली, तो 700 जो उसके पोर्टफोलियो वॉलेट में डाल दिया जाएगा SMG1 को। अब किसी ने 1000 की पूरी भी कर ली है ना, फिर भी उसको 500 और देंगे। ठीक है। वो पोर्टफोलियो करेगा, ऑफ कोर्स इसके बदले वो अपने i100 प्लान लीव कर देगा, और पोर्टफोलियो में जब वो ट्रांसफर होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे अराउंड 1.40, जो भी डॉलर और पाउंड का रेट है, क्योंकि SMG2 के अंदर वो आपके लॉयल्टी अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। वहां से आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं टोकन की फॉर्म में। आप उससे गिफ्ट कोड बना के अपने पैकेजेस भी और ले सकते हैं। वट एवर ऑप्शन यू, चाहे वो क्लियर हो गया। तीसरी ऑप्शन है कि अगर कोई बंदा ओपन मार्केट में जाना चाहता है, वो तो फिर आपको पता ही है कि आखिर टिक बॉक्स आप कंप्लीट करें, आपको एग्रीमेंट मिलेगा और आप ओपन मार्केट में फिर जाएंगे। लेकिन ओपन मार्केट में, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन अभी आपको अपन लीडर्स ही बैठे हैं, लेकिन 19 कमेटी जल्दी खत्म करें और उसके बाद हम इसको खत्म करके इसको मूव ऑन करें। तो ये 3 ऑप्शन है। अब आपकी क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो मैं इसको करता हूँ, क्योंकि सम टाइम एक्सप्लेनेशन इज नॉट इनफ, दे शुड बी क्वेश्चन आंसर एज वेल। सर क्वेश्चन वही है कि जी लॉयल्टी पॉइंट्स की कन्वर्जन या कैलकुलेशंस थोड़ा सा ब्रीफ कर दें इधर। उसमें देखें, मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। आप $1000 पाउंड का आपका पैकेज है, सिंपल। लॉयल्टी बन गई आपकी 1500 पाउंड, जो कि अभी भी 75 मिलती है ना परसेंट। 1500 से अगर आपने कुछ भी नहीं लिया तो फिर तो 1500 आपको मिल गया। अगर आपने सिर्फ 1000 ले लिया है, फिर आपकी लॉयल्टी पीछे रहेगी 500। 500 को फिर हम, क्योंकि वो पाउंड में थी, उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे 1.38 से, जो भी कल उस दिन का वैल्यू, वो भी 138,394 जो भी, तो वो से अगर 500 का 700 बनेगा, फिर हम उसको SMG1 से SMG2 में आपके वॉलेट में शिफ्ट करेंगे लॉयल्टी बैलेंस में। ये नहीं है कि उसमें से 1% डेली मिलेगा, वो इकट्ठी लमसम अमाउंट आएगी। ठीक है जी। वो लमसम अमाउंट से आप फिर आगे जैसे आप लमसम अमाउंट से करते हैं, चाहे गिफ्ट कोड ले लें, टोकन में विड्रॉल ले लें, पैकेज बाय कर ले, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है। कुछ क्वेश्चन सर जी प्लीज। और टोकन की कन्वर्जन तो स्ट्रेट है ना, अगर 1 लाख तो i100 है, तो अगर आप कहते हैं नहीं मैंने ऑप्शन 2 लेनी है, टोकन में कन्वर्ट करना है, तो 1 के बदले 1 मिलेगा। अब उसकी कीमत इस टोकन की कम है, वो एक डिफरेंट, हम किसी को, यानी हर बंदे की चॉइस है, जो भी वो समझे।
ठीक है। और इसमें फायदा किसमें है? ज्यादातर सब लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि जी हमें ऑप्शंस तो 3 दे दी, बट हम लोग इग्नाइटर 100 के ओपन मार्केट के प्लान के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए। तो अब मैं इसकी, क्योंकि आपकी टीम भी बैठी हुई है, मैं आपको क्या जो फीडबैक आ रही, मेंबर जो आ रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क है, वो कह रहे हैं सब लोग लॉयल्टी में जाए, लोग दोबारा बिजनेस में एंगेज हो जाएंगे। तो ये हर लीडर ने और उसकी टीम में मिलकर डिसाइड करना है कि अगर देखें कोई बंदा लॉयल्टी में जाता है वो दोबारा पैकेजेस बाय कर सकता है, दोबारा इनकेट होगा, फिर उसको लॉयल्टी दोबारा 175% आ जाएगी। तो ये बंदे की चॉइस है। जो क्रिप्टो ओरिएंटेड है वो कहेगा कि मुझे मैं टोकन में ले लूं, खाली ना लूं उसमें। और जो बैठा है ओपन मार्केट वाला है, अब वो अगेन वो तो कहेगा उसका एग्जिट है और वो अच्छा एग्जिट होगा उसका। तो अगेन ये इस पे हम एडवाइस नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट एज ए कंपनी साइड से हम एडवाइस करें, वो बड़ा हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है और वो नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ये आपने और आपकी टीम ने डिसाइड करना कि कहाँ पे बिजनेस को फायदा है, कहीं शॉर्ट टर्म फायदा है, लॉन्ग टर्म फायदा है, या एक अकाउंट में ये कर ले, दूसरे पे वो कर ले, एज ये आप लोगों ने इसको फाइनलाइज कर। ओके, तो 19 सितंबर लास्ट डेट है। उसके बाद में हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने दिन में आना शुरू हो जाएगा ईमेल के थ्रू? ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम जल्दी से शायद कल से परसों के दरमियान देना शुरू कर देंगे आपको। उसकी सिर्फ ये कि कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग रेडी, जस्ट लीगल कंप्लायंस टीम उसको रिव्यू कर रही है। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है कि जैसे कोई बंदा टोकन में कन्वर्ट कर लेता है, कल वो क्लेम कर सकता है मैं तो सुना था मुझे टोकन भी मिलने और ये भी मिलने, ताकि हमें भी सेफ गार्ड हो। अगर एक बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो सिर्फ कंपनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम एज ए कम्युनिटी सारे ही प्रॉब्लम में होंगे ना। कोई भी चीज चलती है तो इफेक्ट आता है। तो हम चाह रहे हैं कि थर्सडे फ्राइडे तक ये सारा हो जाए, मैक्सिमम मंडे को लोगों को एग्रीमेंट मिल जाएगी। लेकिन एग्रीमेंट और 19 सितंबर का कोई आपस में लिंक नहीं है, यानी जो आपने चॉइस लेनी हो तो फाइनल करें ना, क्योंकि हमें एंड ऑफ सितंबर तक इसे खत्म करना चाहते हैं, ताकि अक्टूबर से एक नया बिजनेस शुरू हो, एक नई मोमेंटम आए, नई चीजें आए। और खास तौर से जो हम एनर्जी लगा रहे थे ना i100 के, वो खत्म करके हम SMG2 के ऊपर एनर्जी लगाएं। कल अभी एक के टूल लॉन्च की है, SMG लोटो भी लॉन्च होगी है। उसकी कुछ टेस्टिंग है, मैं और MG कर रहे हैं वो, उसको टेस्टिंग करके जैसे फिनिश करते हैं तो फिर हम टोकन को $1 तक लेके जाएं, जो कि मेरा इस पर मेन टारगेट है कि $1 तक उसको लेके जाया जाए। जी ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो ओपन मार्केट में जाना चाहते हैं उनको मतलब उनका जो रास्ता होगा, उनका जो जर्नी होगा वो कैसे होगा? ब्रोकर्स होंगे, एक्सचेंज होंगी, कहाँ की एक्सचेंज है, ये सारी चीजें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। आई नो कि वो सितंबर लास्ट वीक से ही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। देखिए वो सितंबर से हम उसको सब फॉरवर्ड कर देंगे। उसमें भी अगेन फिर 4-6 वीक्स तो वो एक्सचेंज और उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी चलनी है। अभी हमने एथेरियम के वॉलेट की वो भी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, लोग उससे बहुत कम्युनिकेट हो रहे थे। तब एक सेकंड लेवल की कम्युनिकेशन उनके और एक्सचेंज के दरमियान होगी, वहाँ उनको KYC भी अपने डॉक्यूमेंट भी देने हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो 30 सितंबर के बाद तो बंदा बड़ा एफिशिएंटली करेगा तो 3 वीक में ले जाएगा। लेकिन वो जो एक्सचेंज कह रही है कहती इट विल टेक 4 to 6 वीक, क्योंकि वो किसी एक बंदे का नहीं कर रहे, वो जनरल कह रहे हैं कि 4 to 6 वीक तक वो इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। ओके, तो जो अपने ओपन मार्केट में जा रहे हैं और शेयर सेल नहीं करना चाहते हैं i100 के, तो उनको क्या डिविडेंड भी इशू होगा या नहीं? बिल्कुल, वो तो इंटेंशन है, क्योंकि उनको भी इशू है और फिर हमें भी चाहिए। मेरे पास भी वही i100 ही है। तो जैसे अब ये कंपनी सारी ये जो SMG2 की हैं, ये सारी कंपनीज हैं, ये सारी बिलोंग उसी से करती हैं। जी जी। इनके जो प्रॉफिट है, जो पुरानी कंपनी के, वो एवरी क्वार्टर जो वो चाहे मंथली पे कर दें, क्वार्टरली पे कर दें, प्रॉफिट तो वो जैसे होता है ना, अपनी शॉप से डेली प्रॉफिट ले लो, वीकली ले लो, जी जी जी, बात वही है। तो वो प्रेफरेबली एवरी क्वार्टर हम उसको पे किया करेंगे, एवरी क्वार्टरली, यानी 4 टाइम जो भी प्रॉफिट होगा उसका शेयर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीधे स्पष्ट बातों में 3 ऑप्शंस आपको मिल चुके हैं igniter100.com के ऊपर जाके। या तो आप टोकन SMG i100 ETS को टोकन्स में कन्वर्ट कर लें, जो एक ETS का एक SMG टोकन मिल रहा है अभी आपको, जो क्रिप्टो करेंसी है। ये नहीं है कि वो एक मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में अगर वो भी $1, $2, $5, $10 हो जाता तो आपके वारे न्यारे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर है कि आप अपने ETS को i100 में लॉयल्टी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, जो भी आपका पेंडिंग है,
जितनी ROI आपने इग्नाइट 100 से ले ली है उसके बाद में भी, बट उसमें भी आपको लॉस नहीं है जैसे सर ने बताया कि सर जिन्होंने मार्च में अपनी IMPs का ज्वाइनिंग किया था एकेडमी को सोलमैक्स 1 की, तो उनके जो है उनका तो जाके अभी और भी 4-5 महीने रहते हैं उनको खत्म होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? नहीं, वो सबका हमने 200% बैलेंस हमने ऑलरेडी पे कर दिया सबका, क्योंकि उसमें हमें क्यों करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा। देखिए जैसे आपने 70% ले लिया, आज आप एप्लीकेशन 70 कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको दोबारा 1% आ रहा है, आप रोजाना 1% की, क्योंकि लोग ये तो नहीं कहेंगे चलो मैं 30% इकट्ठी अप्लाई करूंगा। आवाम ने क्या कर, लोग पीपल दे गोना डू 1% एवरी डे एप्लीकेशन। तो इसका मतलब उस बंदे की 31 एप्लीकेशन हो जाएंगी। वो हमारे लिए एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होगा और मुश्किल भी होगा। 31 एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। That's why we cleared everyone 200% in one go. ठीक है, तो वो लॉयल्टी पॉइंट्स के अकाउंट में आ जाएंगे, राइट? हाँ, इकट्ठे आ चुके हैं ऑलरेडी। पिछले फ्राइडे को पे कर दिया था। मैं अक्सर जूम कॉल में कहता हूँ, अगर किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो जरूर अपने अकाउंट में चेक कर ले। कि लोगों को कंफ्यूजन ऐसी हुई कि उन्होंने देखा जी मुझे तो एक ही पेमेंट आई है, लेकिन ये नहीं देखा एक में ही इकट्ठी आ गई है। फिर कहीं उन्होंने कहा कि जी मेरा भी 500 का पैकेज था, उसका भी उसको ज्यादा ही मुझे कम आई। तो जिसको ज्यादा ही उसको वो 1% थोड़े मिले थे ना। अब एक को 70 मिले, एक को 50% मिला है। तो जिसको 70 मिल गया हुआ है उसको तो 30% का ही आना है ना, और जिसको 50 मिला है उसको 50 का। लेकिन फिर भी वो अपनी मल्टी टोटल करके देख लें और वो सारे को फाइनल कर। तो वो SMG 1 में ही दिखेगा, वो SMG 1 के माय पोर्टफोलियो में दिखेगा। हाँ जी, माय पोर्टफोलियो ओपन एंड सेविंग अकाउंट में, ओपन एंड सेविंग अकाउंट में 75-25 के हिसाब से आगे वो SMG 1 में दिख रहा है आपको। विजय पटेल जी का क्वेश्चंस है 3 रिगार्डिंग देयर टोकन। व्हाट अबाउट Bilaxy प्लेटफॉर्म एंड ओवर SMG टोकन, जो Bilaxy की प्रॉब्लम आई हुई है, जो उसमें उन्होंने लोगों ने होल्ड किया हुआ है। देखिए दो चीजें हैं। पहली गुड चीज है कि Bilaxy के अंदर इथेरियम ब्लॉकचेन हैक हुई है, इथेरियम का वॉलेट हुआ है। हम SMG2 जो इथेरियम बेस्ड नहीं था, तो उसमें हमें एक लकी है कि हमारी कोई चीज गायब नहीं हुई। अब उन्होंने कहा है कि वो सॉफ्ट लॉन्च 15 सितंबर को कर रहे हैं। मेरी क्योंकि एज एक्सचेंज बिजनेस कस्टमर उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कॉल की, एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि 15 सितंबर को हम सॉफ्ट लॉन्च करेंगे। उसमें जितने लोगों के वॉलेट्स होंगे वो वॉलेट्स अपने विड्रॉ कर सकते हैं अपने दूसरे वॉलेट में, लेकिन 15 सितंबर को वो ट्रेड नहीं कर सकेंगे। और 22 सितंबर से ट्रेडिंग और फुल लॉन्च करेंगे। और जो SMG कॉइन कौन सी एक्सचेंज है उसके ऊपर स्टेकिंग किया वो खत्म हो चुकी है, तो क्या वो लोग वहां से विड्रॉ ले लें या स्टेकिंग अभी भी चलेगी? अभी हम थोड़ा सा यूज करना चाह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग प्रोजेक्ट की तरफ आना शुरू हो। अभी SMG लोटो आपको कल देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग कम से कम हमारे मेंबर एक प्रोडक्ट, मैं नहीं कहता कि $100-200 करें, पर हर प्रोडक्ट के ऊपर एक डॉलर तो स्पेंड करें ना, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, चीजों को देखें, आप एक्सप्लेन करें। क्योंकि बहुत सी चीजें लाइफ में ऐसी होती है, जैसे नेटफ्लिक्स जो लोग एक दफा नहीं देखा नहीं थे, जब देखना शुरू कर देते हैं तो उसको दूसरों को भी बता सकते हैं कि इसमें गुड क्या है, बैड क्या है, और इवन हमें एडवाइस कर सकते हैं। सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए गुड है कि अगर ये सारी हमारे मेंबर, हम चाहते हैं कि अब यूजेबिलिटी पे काम किया जाए, सेविंग पे काम नहीं किया जाए। तो स्टेकिंग वाली साइड पे हम इतना ज्यादा नहीं अब काम करेंगे। ओके, ठीक है। अमरदीप जी के हैं, ऑल पीपल हैव जॉइंड सोलमैक्स ग्लोबल i100 शेयर, व्हाई यू आर गिविंग देम ऑप्शंस SMG टोकन और लॉयल्टी पॉइंट्स? नहीं, हम ऑप्शन तो दे रहे हैं क्योंकि हमें ऑप्शन के लिए लोगों ने कहा है। अदरवाइज हमारे लिए सबसे इजी आई है, क्योंकि उसमें हमें हमारी, देखिए आपको जो लॉयल्टी दे रहे हैं दैट्स गोइंग टू कॉस्ट अस इन सम वे, टोकन इज गोइंग टू कॉस्ट अस सम वे। पर अगर जो i100 है वो हमें कुछ कॉस्ट नहीं कर रहा, वो तो आपने ओपन मार्केट में जाना। तो ये तो हमें इतनी ज्यादा सपोर्ट की ईमेल कि मेरी टीम एग्जिट नहीं करे, ये नहीं हो, वो नहीं, हमने उस ऑप्शन में ये लेके आए। ओके, और SMG के प्राइस, SMG टोकन के प्राइस के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है। वो लोअर वैल्यू में ही लोग सेल करते हैं, वो जो सेलर है उसने अपना डिसीजन लिया कंपनी का, उसमें या एक्सचेंज का डिसीजन नहीं होता है। उस प्राइस को मिनिमाइज एक लॉकिंग स्टेज तक हम लोग क्या लेके जा सकते हैं या नहीं पॉसिबल है? उसमें हम इसको 1 सेंट पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो चेन में आप 2 दिन से हमने विड्रॉ लिया, आज रात को हम क्रिप्टो चेन पे एक बिग पुश लगा रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेंगे और 1 सेंट तक उसको मेंटेन करने की भी कोशिश करेंगे डेफिनेटली।
लेकिन कुछ मार्केट ऐसी हैं जो 7 सेंट से बहुत फायदा उठा रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग 7 सेंट से लेके और 1 सेंट का 7 सेंट्स का लेके पैकेज लगा रहे हैं। तो ये, लेकिन हम इससे शॉर्टफॉल को कमिंग वीक के अंदर फिनिश कर देंगे, क्योंकि ड्यू टू i100 कंसंट्रेशन हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर सके। लेकिन इस वीक से नेक्स्ट 2 डेज के बाद, यानी कमिंग वीक से हम इस पे क्रिप्टो चेंज पे खास में इस पे काम कर रहे होंगे और इसको अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर रहे होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि जी हमने ऑलरेडी सबमिशंस की हुई है एसएमजी ओपन मार्केट जाने के लिए, तो हमें री सबमिशंस के लिए फिर से क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें टीम को दोबारा वर्क करने के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या पॉसिबल है कि वैसे ही वो लोग करें कि सबको ही नए सिरे से दोबारा सबमिशंस करनी पड़ेगी? नहीं, जिन लोगों ने प्लानिंग की है हम उनको दिखने देंगे। हम ये भी चाहते कोई ये ना कहे मैं तो वो ऑप्शन अच्छी थी मुझे दी नहीं गई। तो अगर किसी बंदे की ऑप्शन है तो वो प्लानिंग रखना चाहता है, हमें सपोर्ट में टिकट रेज कर दे, हम उसका ले लेंगे, पुराना ही ले लेंगे। ठीक है। और तो कॉमन यही क्वेश्चन है जी कि प्राइस क्या होगा, वो हम और आप कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि तीनों ऑप्शंस के ये पब्लिक का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कम्युनिटी डिसाइड करती है कि हमें किस तरफ जाना है, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे किसी भी चीज की ट्रेड वॉल्यूम हो। तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन आप लोगों का है। कोई भी ये नहीं कह सकता श्योरिटी के साथ कि इस चीज में जाओगे तो आपको इतना फायदा है। डिसीजन हर इंटेलिजेंसी के तौर के ऊपर आपका अपना होगा। तो मेरी तरफ से अगर किसी ने, अमरदीप जी आपने कुछ क्वेश्चन करना है तो आप पैनलिस्ट में हैं, आप भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज सर से अगर और अपडेशंस तो सर से हम ले लें। अमरदीप जी। जी सर, गुड इवनिंग। सत श्री अकाल सर, अमरदीप बोल रहे हैं। सत श्री अकाल जी, अमरदीप जी कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सर मेरा क्वेश्चन एक लीडरशिप जो बोनस शुरू किया था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तो कईयों का वो लीडरशिप बोनस आता है, कईयों का नहीं आ रहा। तो उसको थोड़ा सा किस तरीके से बताएं कि किनको वो लीडरशिप बोनस एलिजिबल होता है? लीडरशिप एलएमबी की बात कर रहे हैं आप? लीडरशिप जो लीडरशिप बोनस की, बिजनेस प्लान की, मैचिंग बोनस की, लीडरशिप बोनस। अच्छा हाँ, सर अभी जो ऐड करा है सर, इनके दो क्वेश्चन मैं समझ गया। एक तो है जी कि जिसने एसएमजी 1 में क्रूज क्वालिफाई किया था, उसका एसएमजी 2 में वॉल्यूम नहीं आया, तो वो क्या उसको एसएमजी 2 में दोबारा जीरो से उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि वो मर्ज होगा वॉल्यूम? नंबर 1। नंबर 2, जो एसएमजी की लीडरशिप रैंकिंग है उसमें वो जो एसएमजी 1 में 4 वीक्स का पे लैग वॉल्यूम होता था, क्या वही सिस्टम इसी में चल रहा है या कैसे है? क्योंकि काफी लोग अप एंड डाउन रहते हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस का उनको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा। ये है क्वेश्चन इनका। ये भी क्वेश्चन है। दो चीजें हैं, एक तो जो उधर क्रूज, अच्छा वो भी उसमें तीनों पे आ जाता, तीनों सवाल। पहली बात है जो क्रूज क्वालिफाइड थे हम उनको कंसीडर करेंगे, वो बिल्कुल जो वहाँ क्वालिफाइड है, क्योंकि जब हम फाइनल लिस्ट निकालेंगे हम एसएमजी 1 एसएमजी 2 की दोनों की लिस्ट निकालेंगे, तो उसमें बड़ी होने की जरूरत नहीं। इस पे हम काम करके आपको जैसे ये नवंबर के एंड तक खत्म होता है दिसंबर में, तो लिस्ट में सारे लोग मिलेंगे, चाहे वो वहाँ क्वालिफाइड थे यहाँ क्वालिफाइड थे, सेम थिंग है। नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन था एलएमबी का। एलएमबी का क्राइटेरिया दिया कि आपके पास लीडरशिप पोजीशन ही होनी चाहिए, और दूसरी बात है इसकी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि आपका पीएलवी मेंटेन रहना चाहिए। मतलब एक बंदा डायरेक्टर बन गया है और उसने काम छोड़ दिया, उसकी पेइंग लाइक वॉल्यूम में बिजनेस नहीं आ रहा, तो उसको एलएमबी नहीं पे होगा। यानी आपका जो आप पोजीशन पे है उसका पीएलवी, आपको एक पोजीशन आपने वो 25,000 उसका पीएलवी था, तो आपको वो 25,000 पिछले 4 वीक का मेंटेन करना है, और वो मेंटेन रहेगा तो चलेगा। वो जिस वीक का मेंटेन, वो 1 वीक का नहीं है, यानी 4 वीकों में एक, अगर आपने 1 वीक में 50,000 कर दिया, अगर 3 वीक नहीं भी करते तो वो 25,000 तो तीनों, अगर 3 वीक का वीक चलता रहेगा तो 4 लेख का पीएलवी है। ये है। उसके अलावा जो अभी आपने तीसरा क्वेश्चन किया है कि वो डिस्प्ले को हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, लीडरशिप के जो लोगों को फ्रंट पेज पे जैसे था, हम 15 सितंबर को एक वर्जन और ऐप का आपके बना रहे, 15 से 21 सितंबर तक। तो जब बन जाए तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी लीडरशिप के रैंक के लिए पिछले 4 वीक की सेल भी नजर आएगी और बाकी चीजें भी नजर आना शुरू हो जाएंगी, और इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी कि ये मेरा क्या कम है क्या ज्यादा है।
तो ये हम इसको डिस्प्ले के ऊपर लेके आ रहे हैं बड़ी जल्दी। ठीक है, थैंक यू सर। मेरे ख्याल क्योंकि आप किसी और लोकेशन पे हैं और आप मीटिंग पे गए हुए थे तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू आपकी तरफ से, हमारी सबकी तरफ से आपका थैंक यू है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी टीम को सबको सपोर्ट करके तीनों ऑप्शंस में से जो भी सबको अच्छा लगता है उसको एग्जिट करें, सबमिशंस करें, तो जो ईमेल आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सबमिशंस करें दोबारा से। तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम लोग फिर आपको रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू टू यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। या थैंक यू मिस्टर पटेल, थैंक यू टू यू आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, हमारे साथ हमें गाइडलाइन देने के लिए। तो थैंक यू आप सब लोगों का, थैंक यू जी। थैंक यू, गुड। Dhanyawad to everybody. Thank you very much. You know, my last message to you is your success is our success. We cannot spell success without you. Yes, we have had challenges, and guess what? There are more challenges on the way. What we are building is absolutely huge. So please, please, please bear with us. Stay focused. Focus on your goals. Focus on being a team. Let's get to 500 members on this call, and then we can have a major celebration. Thank you very much. Sure, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू जी। कल से या परसों से मैं और अमरदीप जी कोऑर्डिनेशन करके हम लोग रेगुलर कर लेंगे। मैं दुबई आ चुका हूँ और आई एम ऑन द वर्क, एंड जिसको भी अपने ग्रुप के साथ, छोटे ग्रुप के साथ अपनी टीम को आगे मूव करने के लिए कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम लोग अवेलेबल हैं। तो आप शेड्यूल बना के डिस्कशंस कर सकते हैं अपनी अपलाइन के थ्रू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी। बाय बाय। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।